So this is gyroscopic effect on aeroplane. Because this can't be written, because writing them will take 3 or 4 pages. That's why I'm explaining how the gyroscopic effect works on an aeroplane. Suppose this is an aeroplane and this is the jet engines which are there. Jet engines contains rotors which are rotating at very high RPM. So this is the axis of spin of the rotor, valid for both. I will be studying about one, but it is valid for both. Suppose if we are looking from rear end, rear tail, and we see that the rotor of the jet engine are rotating clockwise. So as we are seeing from the rear end, the rotors are rotating clockwise, in clockwise direction. So we have to find what the direction of angular momentum. How do we find the direction of angular momentum? Take your right hand and see from the behind, as you are looking from the rear end. Is this motion and we told that rotors are moving clockwise. So is this motion clockwise? No. Is this motion clockwise? Yeah. So this is the motion clockwise. So here L means the direction of L is, suppose this is the aeroplane and we are looking from the rear end, and the direction of L is in this here. This was the aeroplane and the direction of L is along this aeroplane, means along the aeroplane. As this is a 2D figure, so we have to explain in 3D. So along this there is a L. Now L is in this direction. For this L is in this direction. Okay, here. Now when the plane turns left, the direction of L is important. Now when the plane turns left, this becomes here, this becomes here. So rotors become here, and if we see from here, the L will be in this directions. Means now the new L will be in this direction. So of course this is and you know that angular momentum has a direction. So if you are changing the direction of angular momentum, you need a torque. This was the old direction, this is the new direction. Means uh, this is the delta L. So delta L means, of course, like torque or any vector, if its direction changes, if the direction of angular momentum changes or magnitude of angular momentum changes, then you need a torque. Just like if the direction of velocity changes, or if the so this is the direction of the delta L. So in the direction of delta L, you need a torque. This was initial L, this is the final L, this is the delta in this plane, delta L. In this plane, there you need a torque. So to take a left turn, you need a torque in this direction. But who is going to provide this torque? Is the aeroplane providing this torque? No. Aeroplane does not do that. But to turn left, you need this torque. You need this delta L, you need a torque. So just like we did in forces, like if this is the F and you would force here, you do like F here. So you need a torque in this direction to turn left. बट एरोप्लेन ड्राइवर बोल रहा है नहीं, मैं नहीं दूंगा भाई, मेरे पास इतनी औकात नहीं, मैं नहीं दूंगा। बात वो बोल रहा, पर मुझे लेफ्ट टर्न करना है, करवाओ मुझे। तो इसने सब टॉर्क पर छोड़ दिया। तो इस डायरेक्शन में टॉर्क लो और इसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लो, देखो बैलेंस होगी टॉर्क। अब यहाँ भूल जाओ डेल्टा एल, ये सब भूल जाओ। डेल्टा एल का काम था सिर्फ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालने के लिए, किस डायरेक्शन में टॉर्क की ज़रूरत है। दिस इज़ द टॉर्क विच इज़ नीडेड टू मेक द प्लेन टर्न लेफ्ट। अब प्लेन लेफ्ट टर्न हो गया इस टॉर्क की मदद से, कर लिया प्लेन ने लेफ्ट टर्न, बट टॉर्क तो थी नहीं, दिस वॉज एन इमेजिनरी टॉर्क विच यू टुक। तो इसका काम आ गया लेफ़्ट टर्न करवाने में, और एरोप्लेन लेफ़्ट टर्न कर लिया इसकी मदद से। बट ये टॉर्क अनबैलेंस रह गई। ये भी इस टॉर्क का क्या, ये टॉर्क कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगी। तो हाउ दिस टॉर्क इज गोइंग टू इफेक्ट द एरोप्लेन? सो यू नीड अ टॉर्क इन दिस प्लेन, मीन्स दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस वाले प्लेन में, प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर, यू नीड अ टॉर्क।
एंड दैट टू इन दिस डायरेक्शन. सो कैसे होगा, सेंटर ऑफ द एरोप्लेन को लो और इस डायरेक्शन में टॉर्क चाहिए. तो देखो सेंटर ऑफ द लिया, सेंटर ऑफ द प्लेन से आर, टेल एंड हेड दोनों को इस तरफ टॉर्क चाहिए. ठीक है, दोनों को इस तरफ टॉर्क चाहिए क्योंकि पूरी बॉडी को इस तरफ टॉर्क चाहिए, पूरी बॉडी को, मतलब टेल और उसको भी ये इस तरफ ही टॉर्क चाहिए. तो देखो फ्रॉम द हियर आर क्रॉस एफ, आर राइट हैंड है ये मेरा, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, एफ ऊपर की तरफ, ऊपर ऊपर मतलब समझ लो ये कोई वाई एक्सिस जैसे कि इसमें ले, तो इस डायरेक्शन में हमें टॉर्क चाहिए. तो आर क्रॉस एफ ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में टॉर्क चाहिए. तो आर क्रॉस एफ, तो बो को ऊपर उठा देगा, तो बो ऊपर उठ जाएगा, बो अप, बो अप. और नीचे का देखना हो तो देखो ये ऐसा करने से, ऊपर जाने से, मतलब आर ऊपर जाने से तो टॉर्क किस तरफ आ रही, तो ऐसा करना पड़ेगा, आर एफ, आर क्रॉस एफ, इस तरफ टॉर्क आई तो टेल डाउन. सो इफ a rotor is moving anti-clock, if a rotor is moving clockwise when seen from the rear end, then you will get and turning left, वो ऊपर हो जाएगा, टेल नीचे हो जाएगी. सो सी लेफ्ट टर्न करने पर क्लॉकवाइज मोशन में क्या होता है, डिप द टेल एंड रेज द नोज, नोज ऊपर हो जाएगा, टेल नीचे हो जाएगी. आई जस्ट व्हाट आई सेड. नाउ व्हाट वाज द एक्सिस ऑफ प्रिसिशन इफ समवन आस्क. दिस वाज द एरोप्लेन, इट टुक लेफ्ट टर्न. सो एक जो एक्सिस जो ऊपर की तरफ जा रही है, उस एक्सिस के अबाउट ये प्लेन ऐसे रोटेट हुआ है, तो ये होगी एक्सिस ऑफ प्रिसिशन. तो इस एक्सिस का वो देगा जो भी हो ओमेगा पी, ओमेगा पी इस एक्सिस का देगा, मतलब ये देगा कि एक्सिस ऑफ प्रिसिशन की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा पी. मतलब ये जो है प्लेन क्योंकि ऐसे टर्न हुआ है तो किसी के अबाउट टर्न होना पड़ता है ना भाई, जैसे कि यहाँ से बीच से कोई एक्सिस निकल रही हो, बीच से कोई एक्सिस निकल, तो इस एक्सिस के अबाउट टर्न होगा ना. तो ये जो पेन दिख रहा है इस एक्सिस के ओमेगा पी देगा. और ओमेगा क्या है, रोटर का एंगुलर वेलोसिटी. और आई क्या है, आइडियली तो आई होना चाहिए पूरी बॉडी का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट से सेंटर, बट क्योंकि रोटेटिंग पार्ट जो है वही गायरोस्कोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो और रोटेटिंग पार्ट मेनली जो है वो रोटर ही है, क्योंकि रोटर की ब्लेड्स ही रोटेट कर रही है. और मतलब सॉरी, आइडियली भी रोटर का ही मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए क्योंकि रोटर ही वो कर रही है. देखो इसमें दो गायरोस्कोपिक इफेक्ट आएंगे प्लेन में, एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से. तो बस अगर पूछे कि अगर एक इंजन लगा हो तो आई ओमेगा ओमेगा पी, अगर दो लगे हो तो टू आई ओमेगा ओमेगा पी. बिल्कुल आई हैव नो डाउट ये भी गायरोस्कोपिक प्रोड्यूस करेगा, ये भी करेगा. या अगर ऐसा ना करना तो कोई बात नहीं, टू ना लिखना तो आई ऑफ बोथ रोटर, आई ऑफ ऑल द रोटेटिंग पार्ट्स into omega p, it's still the same because I equivalent is equal to 2i. Now let's verify this by assuming the rotor to be clockwise from as seen from the behind. As seen from the behind, clockwise means L इस तरफ और प्लेन चल रहा राइट टर्न ले तो डेल्टा एल इस तरफ चाहिए होगा, डेल्टा एल इस तरफ चाहिए होगा, तो टॉर्क भी इस तरफ चाहिए होगी, तो रिएक्टिव टॉर्क इस तरफ लगेगी. ये टॉर्क जो इस तरफ लगी वो तो राइट टर्न करने में मदद करेगी, पर इस तरफ वाली अनबैलेंस रहेगी, तो इस तरफ टॉर्क चाहिए. तो आर एफ इस तरफ मिलेगी, तो डिप द नोज और रेज द टेल, डिप द नोज एंड रेज द टेल एज सीन इन द राइट टर्न. अब नाउ अगर पीछे से देखें और पीछे से देखें तो दिख रहा है कि प्रोपेलर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, मतलब इधर पीछे से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, मतलब एल इस तरफ है, इस तरफ, तो एल की डायरेक्शन इस तरफ और उसको लेफ़्ट टर्न करना है. लेफ़्ट टर्न करना है इसका मतलब
देखो एल इस तरफ है, उसको प्लेन को लेफ़्ट टर्न करना है, मतलब इस डायरेक्शन में टर्न करना है, मतलब इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, एक ही लाइन है ना। तो इसको इस तरफ अगर इधर घूम जाएगा तो अपने आप ये वाला इधर घूम जाएगा, समझ रहे हो ना, लेफ़्ट टर्न। सो ये एल तो इस तरफ है, तो इस तरफ अगर घूम जाएगा तो प्लेन लेफ़्ट टर्न मार देगा। तो मतलब डेल्टा एल चाहिए इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क जो घुमाने वाली चाहिए वो भी इस डायरेक्शन में, तो रिएक्टिव वाली चाहिए अपोजिट। हमें रिएक्टिव एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो गायरोस्कोपिक, मतलब सॉरी, जो टॉर्क है, हेल्पिंग टॉर्क जो उसको टर्न करने में मदद करी, वो तो उसको टर्न ही करवाएगी, पर रिएक्टिव वाला फिर वो दिक्कत प्रोड्यूस करता है, वो प्लेन को ज़बरदस्ती उठा दे। भाई प्लेन को अगर लेफ़्ट टर्न करना है तो भाई जाए और सर टर्न कर ले। भाई ऐसा क्या है, ज़बरदस्ती ऐसे 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 करके लेफ़्ट टर्न करवाता है। गाड़ी जब ऐसे नॉर्मली टर्न करवा, भाई टर्न मतलब उठना और बैठना ज़रूरी है क्या? टर्न करवाएं, पर नहीं, ये क्या बोलता है, तुम टर्न करवाओ पर मैं ऐसा करूँगा, मैं प्लेन को ऐसे नीचे ले जाकर टर्न कराऊँगा। ये क्या बात हुई, मेरे को नीचे ले जाना ही नहीं, मतलब ऐसे डिप नहीं करने और रेज नहीं करना, ऐसे इसी करके नहीं टर्न करवाना भाई, मेरे को सीधे सीधे टर्न करवाना, जैसे रोड पर टर्न करवाता हूँ। रोड वाला भी मैं बताऊँगा, रोड में भी एक टेंडेंसी होती है उठने की, बताऊँगा, बट चाहता हूँ ना भाई नॉर्मली टर्न करो, ये क्या नखरा कि नीचे बैठ के इसे टर्न करूँगा। सो इफ़ तो रिएक्टिव वाला हमारे काम का है, ये वाला तो इसको वो कर दिया, सपोर्ट करेगा, ये वाला काम का है। तो आर क्रॉस एफ बो डाउन, नोज डाउन, टेल अप, ये एंटी क्लॉकवाइज सीन फ्रॉम बिहाइंड और लेफ्ट टर्न मार रहा है। अब यही करे वो राइट टर्न मारे तो एल नीचे आएगा, और ये इस तरफ टर्न करना है, मतलब इस तरफ, मतलब ये सेम ही लाइन है, तो इस तरफ टर्न करना है, मतलब टी आर इस तरफ चाहिए टॉर्क, और रिएक्टिव टॉर्क इस तरफ आएगी, मतलब ऐसे नोज अप, टेल डाउन। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट गायरोस्कोपी कपल एक अच्छी बात नहीं है, वो होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, हम टर्न लेफ़्ट करना चाहते हैं, भाई टर्न करवा दे लेफ़्ट, मतलब हमें टर्न लेफ़्ट करवाना था तो हमें एक टॉर्क की ज़रूरत थी इस डायरेक्शन में, तो भाई सीधा सीधा टॉर्क दे देता। अब टॉर्क दे रहा है, उसके साथ एक रिएक्टिव टॉर्क भी दे रहा है। टॉर्क तो मदद कर दे रहा है घुमाने में, पर रिएक्टिव वाला उसको प्लेन को ऊपर नीचे करवा दे रहा है ज़बरदस्ती। शिप में भी ऐसा होता है, और ये अच्छी बात नहीं। पहली बात तो गायरोस्कोपिक इफेक्ट होना हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो अच्छी बात है ही नहीं। सो हाउ टू अप्लाई दिस इन एग्जाम इज I is the mass moment of inertia of rotors, all the rotors, about their center of gravity. Omega is the angular velocity of each rotor. Omega p is the angular velocity of the angle of precision, मतलब कितने झटके से टर्न लिया है, तो इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट टर्न लिया है ना, कितने झटके से टर्न लिया। So this was gyroscope effect on aeroplanes.